Hello and welcome student. This is Subraj and I welcome you to our online classes here. Today we are starting our 7th class English grammar and this is your contents and today we are starting the first lesson. The name contain sentences. Okay, so let's learn here what is sentence. We use sentences in a language. A sentence consists of one or more clauses and often has a phrases also. You have already learned something about the sentence, the clauses and the phrase in your previous class. Here we shall learn something more about sentences. Okay, so we have already discussed what is sentence in previous class, बस वी विल डिस्कस ईयर समथिंग मोर. ठीक है, वैसे हमने क्या कर लिया है, क्या करते हैं, सेंटेंस को हम पिछली क्लास में भी पढ़ते हैं बट वी हैव टू डिस्कस समथिंग मोर. कुछ इससे अधिक हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस हियर. ओके, द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस इज गिवन. A sentence is the grammatical unit made up of a group of words that makes complete sense by itself. Okay, what is the definition of a sentence here? A sentence is a grammatical unit made up of a group of words that make complete sense by itself. Okay, if we talk about in a one line, what is the definition of a sentence? A sentence is a group of words दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ. ओके, देखो होता क्या है, अ सेंटेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड का मतलब है कि जो सेंटेंस है वो क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, यानी शब्दों का समूह होता है या फिर शब्दों का एक ऐसा व्यवस्थित समूह होता है जो अपने आप में हमें क्या बताता है, उसका पूरा पूरा मीनिंग बताता है. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय itself. Okay, so it means what is the second thing here, there has some features of a sentence here, like here. Okay, so every sentence have begins with a capital letter, यानी जो भी सेंटेंस होता है वो हमेशा कैसे शुरुआत होती है, उसके कैपिटल लेटर से. ओके, सो एंड विद आइदर अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स और एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स. ओके, जो भी सेंटेंस होगा वो किससे स्टार्ट होगा, हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. जब भी खत्म होगा तो उसके लास्ट में क्या होगा, या तो फुल स्टॉप होगा, ओके, या फिर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क्स होगा, या फिर कोई एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है. ओके, हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक है, एवरी सेंटेंस हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक है, सभी सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक क्या होता है, प्रेडिकेट होता है. ओके, सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स a sentence is a group of words that makes complete sense by itself. Okay, it has, okay, it begins with a capital letter, it ends with either a full stop, question marks and exclamation marks, and it has a subject and predicate. Okay, so what is next thing in your chapter? So next we have a parts of a sentence. Okay, so if we talk about how many parts of a sentence, so there are two parts of a sentence, subject and predicate. Okay, for example, there is a one sentence here. Okay, so sentence has two part, subject and predicate. Okay, sentence के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट को सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं. ओके, so let's discuss about what is subject. The part which names the person or things we are talking about is called the subject. The subject usually comes at the beginning of a sentence. Okay, देखो यहाँ पर एक चीज बता रखी है कि द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, मतलब पूरा पूरा सेंटेंस है और इस सेंटेंस में हम जिस किसी के बारे में क्या कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा. क्यों सब्जेक्ट होगा, देखो जैसे ये पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है, और ये सेंटेंस जिस किसी के भी बारे में होगा, ठीक है, वो किसी का नेम हो सकता है, ठीक है, वो कोई नाउन हो सकता है, वो कोई प्रोनाउन हो सकता है. ओके, या फिर वो कोई वर्ड हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा. ओके, नेक्स्ट थिंग,
the part which tell us more about the person or thing or what they do from the predicate of a sentence. The verb is always part of the predicate. ठीक है, the part which tell us more about the person or things, मतलब ये हुआ कि जैसे एक पूरा क्या है, होल सेंटेंस है, ओके, और जो सेंटेंस पूरा का पूरा जो सेंटेंस के बारे में बताएगा वो तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो किसके बारे में बताएगा, सब जो किसके बारे में बताएगा, सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, द वर्ब इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अ प्रेडिकेट। इसमें हमेशा क्या होता है, वर्ब वर्ब होता है। ओके, next thing is here, what is the feature of a predicate? Okay, the subject however did not always come at the beginning of the sentence. For example, down drop the cell, how beautiful the rose is, or did you see my watch? ठीक है, ये मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट गॉट कंफ्यूज दैट द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट इन एवरी सेंटेंस। मतलब जो क्या है, हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा किस में आता है, बिगनिंग में आता है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल हिज गिवन हियर। फर्स्ट, द प्रेडिकेट कैन बी मेड ऑफ ओनली अ वर्ब। ठीक है, प्रेडिकेट में हमेशा क्या हो सकता है, एक सिर्फ एक ही वर्ब हो सकता है, जैसे ही सब्जेक्ट एंड लाफ्ट हियर वर्ब। ओके, द प्रेडिकेट मे हैव एन ऑब्जेक्ट, जैसे आई बॉट, इसमें वर्ब है और ये क्या है, प्रेडिकेट है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज द प्रेडिकेट कैन आल्सो बी मेड ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, से कॉम्प्लीमेंट से भी बना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी इज सब्जेक्ट ईयर, इज वर्ब ईयर, अ म्यूजिशियन इज अ कॉम्प्लीमेंट। ओके, so here we have discussed about what is subject and what is predicate, and I will tell some features of the subject and predicate here. Okay, first feature is, mostly student got confused that the subject comes first in every and each sentence। मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, हमेशा कंफ्यूज होते हैं या फिर ये मान के चलते हैं कि सब्जेक्ट हमेशा क्या आता है, फर्स्ट में आता है, लेकिन ये नहीं होता है। ठीक है, ये ऐसा हमेशा नहीं होता है कि सब्जेक्ट क्या है, इसके पहला है। ठीक है, ये क्या हो सकता है, बाद में भी आ सकता है। ओके, बाद में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, कभी कभी क्या होता है, सेकेंड, ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। ओके, सो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल हियर, गो देयर। ओके, one sentence is here, go there। okay, and it is an example of imperative sentence। okay, the kinds of sentence we will discuss after this। okay, and it is an example of imperative sentence। okay, so it means, for example, you are in your classroom and there is you, it means your class, you and your class and your teacher, and your teacher command you go there। okay, so what does it mean? इट मीन्स सब्जेक्ट डिड नॉट मेंशन हियर। ओके, मतलब क्या हुआ, जैसे आप अपनी क्लास में हैं और आपकी क्लास में क्या है, आपकी क्लास में आपकी पूरी क्लास, आप और आपके टीचर हैं। ओके, और आपके टीचर ने क्या किया, आपको क्या किया, कमांड किया कि गो दियर। ठीक है, और हमने क्या किया, कि वी आर डिस्कसिंग हियर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप क्या है, अपनी क्लासरूम में है। ओके, और आपके टीचर ने आपको क्या किया, कमांड किया कि गो देयर। ओके, क्या कहा आपके टीचर ने, गो देयर। ठीक है, तो उन्होंने क्या मेंशन नहीं किया, मतलब सब्जेक्ट इसमें मेंशन नहीं किया, लेकिन ये क्या है, एक अंडरस्टूड सब सेंटेंस है, इसमें यू क्या होगा, अंडरस्टूड होगा। ओके, इसमें यू क्या होगा, अंडरस्टूड होगा, इसलिए इसमें जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यू अपना आप ही हो जाएगा। ओके, so next thing here, if you talk about the next feature of the subject and predicate here, if you talk about any questions, okay, and exclamatory sentence,
ठीक है, इसमें कभी कभी क्या होता है, जो क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं या फिर जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ढूंढना कभी कभी क्या होता है, कठिन होता है। ओके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट अ ब्यूटीफुल, ठीक है, एग्जांपल है व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस सी इज वेयरिंग। ओके, सी इज वेयरिंग। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई हमारे पास क्या होता है, कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके, और कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, या तो व्हाट और या फिर हु। ओके, व्हाट या हु लगा के हम क्या कर लेते हैं, सब्जेक्ट को पूछ लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड वन सेंटेंस हियर व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस सी इज वेयरिंग। ओके, सो आई कैन आस्क हु इज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ओके, हु इज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस। सो आंसर क्या होगा आपका, शी। क्या होगा, शी। सो इट मीन्स वी गॉट अवर सब्जेक्ट शी। ओके, so here we have discussed about what is sentence. Okay, so sentence is a group of word that makes complete sense by itself. Okay, so here what is subject part of a sentence, how many part of a sentence, so there are two part of a sentence called subject and predicate. Okay, so student, what you have to do from this lesson, you have to solve out the exercise here. Okay, for example here, identify sentences from the following list, one has been done for you। आपने क्या करना है इसमें, जैसे ये दे रखा है कि आपको इसमें ये पता करना है, ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेंटेंस है और कौन सा नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें फर्स्ट दे रखा है वी आर हैप्पी टू रिसीव यू एज अवर गेस्ट, और मैंने कहा था कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, यानी सेंटेंस क्या होता है, एक शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो हमें उसका पूरा पूरा मीनिंग बताता है। ठीक है, तो जैसे इसमें फर्स्ट क्या है, वी आर वेरी हैप्पी टू रिसीव यू एज आवर गेस्ट, मतलब हम लोग क्या है, बहुत खुश हैं आज क्योंकि आप क्या हो, हमारे गेस्ट हो। ठीक है, अब इसमें देखो, जैसे इसमें थर्ड नंबर है इन अ नटशेल, तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि सेंटेंस नहीं है। ठीक है, और जो यहाँ पर सेंटेंस होगा वहाँ पे सेंटेंस करना है, और जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पे क्रॉस कर देंगे आप। ओके, एंड नेक्स्ट exercise here, underline the subject and encircle the predicate in the sentence one has been done for you, one has been done for you। जैसे इसमें फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट अवर ट्री, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, और ये वाला क्या है, प्रेडिकेट है। ओके, so you have to do the both exercise, the exercise number 1, okay, and exercise number B here। Okay, and what you have to do and how to find out the PDF file, so I will upload the whole PDF file in a description box of the YouTube, so you can download from there। Okay, so you can subscribe our channel and press the bell icon for more updates and notification। So thanks for watching the video, take care and goodbye।